Hello students, welcome to online classes of CATG. We are today meeting with the first chapter of our second textbook of class 12, which is named Vistas. I already told you in the previous lectures of this session that there are two textbooks. One is Flamingo and the other is Vistas. Today we are starting with the first chapter of the textbook Vistas. I have mentioned that here. And the very first chapter, the story, which we are going to start with today is The Third Level by Jack Finney. This is lecture 1 of the third level. This story, The Third Level by in the textbook Vistas, is a very, very good story, is a very, very good chapter. A difficult one at that. It's a difficult story to understand, I must say, because it needs a psychological understanding of human behavior to go deep into what the story actually aims to communicate. Jack Finney, the author, he was an American author. Let me introduce you to the author in the very first go of the story. You can see here on the board, it says The Third Level is a science fiction. It's a science fiction which was published in the year October 1952. It was written by an American author, Jack Finney. Jack Finney's full name was Walter Braden Jack Finney. Walter Braden Jack Finney lived in the time span of 1911 to 1995. He was a well-known author who wrote a good number of science fiction and science thrillers. And he himself lived and studied in Knox College, Illinois. Illinois, I must tell you, is a state in the Midwestern region of USA, United States of America. United States of America comprises so many states together. Illinois is one state out of those. Why I shared this fact that Jack Finney studied in Knox College, Illinois, this is something worth knowing before you start the story. That's because the story, The Third Level, also brings into picture the place named Illinois. It brings into picture, into discussion, a lot of things about Illinois. Means Illinois plays a very important role in the story, The Third Level. So there is a connection between the place where the author himself lived and the place that he picturizes in the story, which he brings into discussion in the middle, in the story, The Third Level. It is a very, very psychological story. I told you a few minutes back in the introductory talk. Psychological story means I said you need to understand psychological behavior of human beings to understand this story. ये कोई सीधी कहानी नहीं है. इसे समझने के लिए तुम्हें इंसान के साइकोलॉजिकल बिहेवियर की समझ होनी चाहिए. चलो अब हम लोग स्टोरी को वैसे शुरू करते हैं फॉर्मली कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन के साथ. इस कहानी में एक ऐसे एस्पेक्ट का डिस्कशन किया गया है जैसे कि जब हम लोग बहुत किसी डेवलप्ड जगह पे रहते हैं, when we live in a very, very developed place, this modern life, these modern conditions, the glamour of the cities, the demands, the lifestyle, brings in tremendous expectations out of a human being. A human being who lives in these urban spaces, these urban spaces. जैसे हम लोग इन शहरों के चकाचौंध में जीते हैं, it puts in tremendous level of expectation out of us. तुम देखोगे इस बात को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत elsewhere अपनी मेन कहानी से इधर उधर हटना होगा. जैसे कि जब ये कोरोना का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, उसकी शुरुआती स्टेज में ही हमने देखा कि I read in Mumbai
a TV actor committed suicide in the very early stage of this corona scare and problem. Sometime back, I heard that another TV actor who committed suicide. And when I read about these people, why they committed suicide, the reason cited was they said, I am under tremendous pressure of performing good, pressure of working well, pressure of earning good money and maintaining that lifestyle. I'm scared because I do not have enough work. और ऐसा प्रेशर मैं झेल नहीं पा रहा हूं, मैं झेल नहीं पा रही हूं, और I'm fed up with my life now. I cannot live with these dreams crushed and my dreams broken. मैं नहीं जी पाऊंगी इसके साथ. Some actress said who committed suicide. लोग मर जाते हैं इस प्रेशर में, अंडर प्रेशर, एक्सपेक्टेशन प्रेशर, प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल, प्रेशर टू मेंटेन दैट ग्लैमर. ये जो आधुनिक जीवन है, ये हमारे दिमाग पर बहुत तरह का तनाव डालता है, बहुत तरह का जोर डालता है हमारे ऊपर. अभी जैसे ये जो फिर तुम्हारा ध्यान खींचते हैं अभी की प्रेजेंट समस्या पर. ये जैसा कोरोना के कारण देश में एक अजीब समस्या आई है, इसमें ये जो जॉब लॉसेस, द मॉनेटरी लॉसेस, आप एक अच्छी लाइफ जीते आ रहे थे, आप एक तरह की जीवन शैली में रहने के आदी थे, लेकिन अचानक हो सकता है कि हम में से बहुतों से हमारी वो लाइफस्टाइल्स छिन जाएं. और अगर वो लाइफस्टाइल्स हमसे छिन जाएंगी, यू डू नॉट नो हाउ अ सर्टेन ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड्स टू दैट सिचुएशन. हो सकता है एक इंसान ऐसे तरह के चेंजेस के प्रति सामान्य रिस्पॉन्ड करे, कोई पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे, कोई नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करे, कोई ब्रेकडाउन में चला जाए, कोई डिप्रेशन में चला जाए, कोई पागल हो जाए, कोई सुसाइड कर ले, कोई संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए. हर इंसान का बिहेवियर और रिस्पॉन्स सिस्टम अलग अलग होता है. इस बात से तुम मेरे अग्री करोगे. ये कहानी है तो बहुत पहले की. इट वॉज रिटन वे बैक इन द 1950s. यहां तुम देख पा रहे हो, ये कहानी लिखी गई थी इन द ईयर 1952. 1950s के समय में असल में दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, दो बड़ी बड़ी घटनाएं खत्म हुई थी. 1950s दुनिया के लिए एक बड़ा ही टेंस टाइम था, क्योंकि 1950s के कुछ समय पहले 1939 to 1945 में वर्ल्ड वॉर II had finished. 1914 से 1918 में it was World War I that took place. World War I, World War II ने दुनिया में लोगों के मानसिक बनावट पर बहुत ज्यादा जोर डाला था. People had lost trust, lost faith about themselves. They had lost faith in the reason for living. They wanted to run away from that modern lifestyle. Many were under pressure. बहुत तरह का तनाव, बहुत तरह का दबाव लोगों के दिमाग पर था. ऐसे ही समय में एक बैलेंस बिठाना होता है. एक तरफ एक दुनिया है जो बिल्कुल अपनी स्पीड से भाग रही होती है. मॉडर्न लाइफस्टाइल, ग्लैमर, परफॉर्मेंस, मनी. और एक तरफ एक इंसान का दिमाग होता है which is under pressure, scared, loss of trust, loss of faith, looking for peace, looking for some mental happiness, looking for some relaxation. और वो मिल नहीं रहा है. वो मिल रहा नहीं है क्योंकि आपको हर दिन इस दुनिया के साथ अपने को कंफर्म करना है, अपने को सेट करना है इन डिमांड्स के साथ. और रोज रोज इस तरह के डिमांड्स के साथ सेट करने में होता क्या है, आप कभी कभी अपना मानसिक बैलेंस लूज कर जाते हैं. और जब अपना मानसिक बैलेंस आप लूज करते हैं, आई सेड, जब आप प्रेशर में होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आप अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं. कोई इंसान गुस्सा सकता है, कोई इंसान संघर्ष कर सकता है, कोई इंसान उसमें भी खुश रह सकता है, कोई डिप्रेशन, कोई सुसाइड, कोई एस्केप करना स्टार्ट कर देता है. एस्केप, आई यूज द टर्म एस्केप, एस्केपिज्म. इस बात को हम तुम्हें समझाएंगे. बोर्ड को एक बार हम क्लियर कर लें, उसके बाद तुम्हें समझाते हैं ये बात.
I use the term escape, escapism. Escapism मतलब क्या होता है? Escape मतलब भाग जाना. Escape मतलब कोई चीज को छोड़कर वहां से फिसल लेना, निकल जाना, भाग जाना. Escapism. जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में होते हैं, तो हमारा दिमाग अलग अलग तरह रिस्पॉन्ड करता है. किसी का दिमाग फट पड़ता है, किसी का दिमाग गुस्सा सकता है, किसी का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है, और किसी का दिमाग फ्ली, एस्केप, भाग जाता है. क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर वो लेगा नहीं, और अगर प्रेशर नहीं लेगा तो उसके पास कई ऑप्शंस हैं. उनमें एक ऑप्शन है उस प्रेशर को छोड़कर भाग जाना. How does your brain do that? We all do that in our own ways. Sometime when you are very disturbed because you have performed poorly in a test, or because you have been scolded by one of your parents or a teacher, or you had a bad time with your friend, what you do is you go back home and put your earphones into your ears and listen to some good music. And when you listen to some good music and start humming and singing, you forget those bad moments for a while. कुछ समय के लिए आप उन बुरे पलों को भूल जाते हैं. Sometimes people start practicing one of their hobbies. Somebody will start singing, somebody will start listening to music, somebody will start dancing, somebody might get into painting. कोई कुछ भी कर सकता है. हो सकता है कोई इंसान उसको भूलने के लिए, उससे भागने के लिए किसी हॉबी में चला जाए. और कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी प्रेशर झेल नहीं पाते और उनके माइंड्स हल्का हल्का मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं, एंड दे गेट इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. व्हेन यू गेट इनटू अ मेंटल डिसऑर्डर, व्हेन योर माइंड इज नॉट healthy, when your mind is not working normal, you need to visit a psychologist, or you need to meet a psychiatrist. So you need to meet a psychiatrist sometimes because your brains are not functioning healthy. One of such many mental disorders, there might be many kinds of mental disorders. One out of that is named schizophrenia. Schizophrenia is one kind of mental disorder in which you start to get hallucination. Hallucination मतलब भ्रम. आपको भ्रम होना शुरू हो जाता है. आपको you start to see things. You start to see people which are not real. You start to imagine things which are unreal. You start to believe that you are living with people and in conditions which are absolutely unreal. There is something like that happening around you, but you start to strongly believe that yes, you are living with those people. बहुत सारी ऐसे फिल्में, हिंदी फिल्मों में, वैसे तो ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ऐसा हम लोग की हिंदी फिल्मों में, हमारे जीवन में, हम लोग मानसिक रोगियों को आमतौर पर मजाक उड़ा के देखते हैं. आमतौर पर हम उनका मजाक उड़ाते हैं. हम उन्हें पागल कहते हैं, हम उन्हें खिसका दिमाग कहते हैं, उनको मजाक के नजरों से देखते हैं. ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है आमतौर पर, नहीं होना चाहिए. स्किज़ोफ्रेनिक लोग हिंदी फिल्मों में दिखते हैं. हिंदी फिल्मों में देयर आर कैरेक्टर्स. एक तुम्हें शायद नहीं पता हो, थोड़ा पहले की फिल्म थी, एक ऋतिक रोशन की फिल्म थी बहुत पहले, कुछ क्रेजी 4 नाम की. बहुत अच्छी तरह तो हमको नहीं आता है, लेकिन उसमें बहुत ऐसी फिल्में होंगी. आई एम जस्ट साइटिंग वन एग्जांपल फॉर यू. उसमें एक कैरेक्टर था जो अचानक पूरी फिल्म के बीच में चिल्लाने लगता था कि मुझे गांधी जी के पास ले चलो, गांधी जी ने मुझसे ऐसा कहा है, मुझे गांधी जी ने बताया है कि वो देश के लिए आज ऐसा करने वाले हैं. जबकि उस वक्त ऐसा कोई गांधी जी नहीं थे, बिल्कुल मॉडर्न टाइम्स था. लेकिन वो कैरेक्टर चिल्ला के बार बार गांधी जी की बात करता था कि गांधी जी ने मुझसे कहा है, नेहरू जी अभी मुझसे ये बता रहे हैं. सबके सब हंसते थे. दे ट्रीटेड हिम एज मैड. लेकिन उस कैरेक्टर को, तुम्हें एक वो फिल्म याद होगी, मुन्ना भाई एमबीबीएस. मुन्ना भाई एमबीबीएस में जिस तरह वो संजय दत्त मुन्ना कैरेक्टर को, नो सॉरी, आई टोल्ड यू द रॉन्ग नेम, दैट वाज लगे रहो मुन्ना भाई.
लगे रहो मुन्ना भाई में कैसे संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे। वैसे उस फिल्म में तो यह दिखाया गया था कि संजय दत्त को गांधी जी ओरिजिनली दिखते थे, लेकिन एक फिल्म के मोमेंट पर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर। उसने गांधी जी को इतना पढ़ लिया है कि उसको गांधी जी का हैलुसिनेशन होने लगा है, भ्रम। इसको लगता है कि गांधी जी रियल हैं, जबकि वो रियल है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को हम आमतौर पर स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं। ये बहुत दुख की बात है, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे लोग बड़ी परेशानी में जीते हैं, उनके साथ वाले लोग भी बड़ी परेशानी में जीते हैं, क्योंकि ऐसे लोग एकदम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो सारी अनरियल घटनाएं उनके साथ होती हैं, सचमुच होती हैं। I personally knew a student here in KADG whose father happened to be a schizophrenic just a few years back. और I remember so well, वो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था, he was a very good student, और उसके बावजूद इतनी परेशानी में जीता था वो, because when he used to reach home, sometimes the father will say कि तुम कहाँ गए थे, I know you met some relative, उस रिश्तेदार से तुम आज मिल के आ रहे हो, मुझे दिखा था, मैं देखा हूं आज तुम मिले हो। The son said the son had never met that relative, लेकिन वो कहते थे नहीं ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और वो बड़े गुस्से में रहते थे। He used to call us sometimes asking where my son is, क्या आपने उसको उस रिलेटिव के साथ भेज तो नहीं दिया। अजीब किस्म की घटना है, लेकिन ऐसा हो जाता है। हमारे स्टोरी का जो इतनी बातें तुमसे हमने इसलिए शेयर की बच्चों, because I wanted you to feel and understand what mental disorder can be and what mental disorder can do to your brains. तो ऐसे लोग दुनिया में हमारे अराउंड होते हैं, ये कोई अनरियल लोग नहीं है। हमारे बीच में हमारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस किस्म की मेंटल प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो और एस्केपिज्म में एंटर कर गए हो। Our own people might have entered into escapism. What is escapism? You can say escapism is a habit of escaping from the harsh realities of everyday life. तो ये जो मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाता है बहुत बार, हमारे स्टोरी का जो कैरेक्टर है उसका नाम है चार्ली। यहां लिखा है हमने चार्ली। चार्ली इज द प्रोटैगोनिस्ट, मींस द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, द थर्ड लेवल। और लोग कहते हैं उसके फ्रेंड्स, उसका साइकियाट्रिस्ट कहता है कि चार्ली सफर्स फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर नेम्ड वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट यानी कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, जैसे हम कभी कभी हमारे मन की दबी हुई इच्छाएं सपने में पूरी होती हैं। हम सोए रहते हैं, when we are sleeping, we are asleep, we see a dream where our imagined things come true. लेकिन अगर ऐसा खुली आंखों से होने लगे कि खुली आंखों से तुमको तुम्हारे जीवन के इमेजिन की हुई चीजें सच होने लगे तुम्हारे लिए खुली आंखों से, तो तुम कर क्या रहे हो पता है? तुम्हारा दिमाग असल में एस्केप कर रहा है और एस्केप करके ड्रीम्स को, वेकिंग ड्रीम, जगी हुई हालत में ड्रीम देख रहा है और अपने विश को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा एक मेंटल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। तो चार्ली इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, और जिसके बारे में डॉक्टर ऐसा कहते हैं। ये जो यहां तक के डिस्कशन के बाद एक बार हम बोर्ड क्लियर कर दें। बोर्ड क्लियर करने के बाद हम तुम्हें फर्दर इस कहानी के बारे में बताते हैं। हमारी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, एज आई टोल्ड यू। चार्ली प्रेजेंटली, यहां बोर्ड पर देखो, तुम्हारी हेल्प और तुम्हारी क्विकर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां कुछ चीजें हमने पहले से लिख के रखी हैं ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो और तुम जल्दी चीजों को समझ पाओ। चार्ली प्रेजेंटली लिव्स इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। there is one state named Illinois, there is another state named New York, New York State. न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर चार पांच बड़े बड़े एरियाज हैं, जिसमें एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा डेवलपमेंट सेंटर है जिसका नाम है मैनहट्टन।
तो न्यूयॉर्क सिटी, तुम न्यूयॉर्क सिटी से क्या समझते हो? जैसे ही हमारे मुंह से निकलता है न्यूयॉर्क सिटी से हमारे अंदर आता है, वी इमीडिएटली स्टार्ट टू इमेजिन थिंग्स ऑफ डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट मार्कर्स, ह्यूज टॉल skyscrapers, completely glades, development, fast life, money, enjoyment, pleasure, ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं when we imagine anything about New York City. लेकिन कहानी के डिस्कशन के दौरान शुरुआत में हम तुमसे बता चुके हैं कि जितना ज्यादा डेवलपमेंट, जितना ज्यादा ग्लैमर, उतना ज्यादा स्ट्रेस. उस डेवलपमेंट, उस ग्लैमर, उस सो कॉल्ड हैप्पीनेस को मेंटेन करने का प्रेशर. तो अभी हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन, और he lives present there, but he actually spent his childhood in Illinois. Illinois is a far off, is a different state in USA. और इलिनॉइस में भी एक और छोटी सी जगह है जिसका नाम है गैलिसबर्ग. तो उसने अपना बचपन बिताया था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक छोटा गांव जैसी जगह गैलिसबर्ग में उसने अपना बचपन बिताया था. और चार्ली, तुम्हें याद होगा हम बताए थे कि जैक फिनी द ऑथर ऑल्सो स्टडीड एंड स्पेंट हिज चाइल्डहुड और स्टेड इन इलिनॉइस. और देखो हमारा प्रोटैगनिस्ट चार्ली भी इलिनॉइस में ही अपना बचपन बिताया है. तो ये वो कनेक्शन है जो तुम्हें हम बताना चाहते थे इन द वेरी बिगिनिंग. तो चार्ली बचपन बिताया उसने गैलिसबर्ग इलिनॉइस में. बचपन, हैप्पी चाइल्डहुड. वर्तमान कैसा है? स्ट्रेस्ड प्रेजेंट, स्ट्रेस्ड, बहुत तनावपूर्ण वर्तमान, बहुत खुश बचपन. तो दिमाग क्या चाहता है चार्ली का? चार्ली का दिमाग सीक्रेटली चाहता है कि इस प्रेजेंट स्ट्रेस की दुनिया से वो भाग जाए और किसी तरह से अचानक गैलिसबर्ग की उस दुनिया में पहुंच जाए, उस खुशियों की दुनिया में जहां वो कितना खुश था, जिस दुनिया में वर्ल्ड वॉर्स नहीं हुए थे. उसके बचपन में सम टाइम इन द चार्ली के बचपन, यानी कि चार्ली के बचपन में मे बी sometime in 1890s और 1900s. देखो जैक फिनी का पैदा होने का साल था 1911. तुम ध्यान दो, 1911 में जैक फिनी पैदा हुआ था. वीडियो को तुम थोड़ा पीछे करके देखोगे तो तुम रिलेट कर लोगे. हमने लिखा था 1911. जैक फिनी का जन्म 1911 में हुआ. 1911 का मतलब समझो कुछ ऐसा समय जब वर्ल्ड वॉर नहीं था, या बस वर्ल्ड वॉर 1 उसके पैदा होने के कुछ साल बाद. मतलब जो रेफरेंसेस हैं वो देखो वर्ल्ड वॉर के पहले वाले समय के आ रहे हैं. चार्ली चाहता है कि वो अपने बचपन कुछ 1890s में, 1900s के अर्ली पीरियड में वापस चला जाए अपने बचपन में जब वो कितना खुश था. और उसका जो दिमाग है वो आज अपने आप को दिखाता है. He poses to himself that he is living very happy. He has everything. He earns money. He is living happily. He wears fashionable clothes. He lives a fashionable life just like any other rich American. He wears very, very fancy clothes, fancy hat, fancy lifestyle. And he poses to himself that he is living very happily. लेकिन वास्तविकता यह है कि अंदर से तो वो स्ट्रेस में जी रहा है और अंदर से उसका अंतर्मन भाग जाना चाहता है. और भागकर कहां जाना चाहता है? भागकर जाना चाहता है गैलिसबर्ग की उस खुशी वाली दुनिया में भाग जाना चाहता है वो. He is stressed, poses to be living happily. देखो यहां बोर्ड पर, but his stressed mind wishes to escape to happy old times of Galesburg, Illinois. और जानते हो उसका दिमाग भागने के लिए किस चीज का सहारा लेता है? भागने के लिए उसका दिमाग सहारा लेता है एक रेलवे स्टेशन का. कैसे, ये हम तुम्हें बताते हैं. एक बार बोर्ड क्लियर कर लें, फिर तुम्हें बताते हैं इस बारे में. चार्ली अपने एस्केप करने के लिए, उसका माइंड एस्केप करने के लिए फ्रॉम द स्ट्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिज
his modern life in Manhattan, New York, from where he wants his brain wishes to escape to the happy times of Galesburg, Illinois. What his brain invents, his brain invents something out of nowhere. And what kind of invention? His brain starts to believe that in Manhattan there is a very iconic railway station, a very, very world famous iconic railway station named Grand Central Station. Grand Central Station in Manhattan, New York. In Grand Central Station, you can Google Grand Central Station and look at its pictures. It's a very iconic one. Grand Central Station में असल में there are two levels. Level 1, first floor. Level 1 is for faster trains. You go down and go to level 2, means the second level, where relatively slower trains move. And there is no third level. But Charlie's brain invents, imagines, structures out of nowhere a level 3 at Grand Central Station. That's why I have shown it with the dotted lines. Level 3, the third level. Look at the name of the chapter, the third level. Now you well understand why the story is named the third level. Because Charlie's mind imagines that there is a third level at Grand Central Station, which is Charlie's imagination and nothing else. Or I told you, Charlie suffers from some kind of mental disorder. Why mental disorder? Because of excessive stress of modern life, that his brain starts to escape and invents a third level at the iconic railway station Grand Central Station. और उसका ब्रेन क्या करता है? उसका ब्रेन इन्वेंट कर लेता है और इमेजिन करता है. असल में उसका ब्रेन उससे ये कमांड देता है, उसको सोचवाता है, उसको मजबूर करता है सोचने के लिए कि न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन से, जैसे डेवलप्ड प्लेसेस से, इलिनॉइस के एक छोटी जगह गैलेसबर्ग तक कोई ट्रेन जाती नहीं थी. शायद कोई बस जाती होगी या कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता होगा उस टाइम में. और इलिनॉइस में ही एक बड़ी डेवलप्ड जगह है शिकागो. शिकागो तक तो उस जमाने में भी ट्रेन जाती थी, लेकिन शायद गैलेसबर्ग तक नहीं जाती थी. तो चार्ली का ब्रेन असल में चाहता है कि कोई ट्रेन चलती है ऐसी जिसमें कि वो जल्दी से बैठ के और भाग जाता, जब चाहे तब गैलेसबर्ग भाग जाता. लेकिन उसको ऐसी जगह मिल तो रही नहीं है. कुछ ट्रेन्स शिकागो तक तो जाती हैं, लेकिन गैलेसबर्ग नहीं जाती हैं. कहां से? मैनहट्टन से, न्यूयॉर्क सिटी से. तो उसका ब्रेन ऐसा इमेजिन करता है कि लेवल 1 वेयर फास्टर ट्रेन्स मूव एंड गो टू डिस्टेंट प्लेसेस, लेवल 2 वेयर रिलेटिवली स्लोअर ट्रेन्स गो maybe to places like Chicago. But there is a third level at Grand Central where very, very slow subways मतलब underground trains, subway, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सबवे का मतलब जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स होती हैं. कुछ अंडरग्राउंड ट्रेन स्लो वाली हैं जो गैलेसबर्ग तक जाती हैं, और उसका दिमाग ऐसा सोच लेता है. और सोचने के बाद वो बाकायदा जाता है घूमने. He goes to third level. He goes to that place. He looks at that place. He defines that place. He defines the kind of people that he sees there, their dressing style, everything. And when he comes back, he is under tremendous stress. वो घबराहट में चला जाता है बाहर आने के बाद, और आने के बाद सबसे शेयर करता है, अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलता है. और उसका साइकियाट्रिस्ट, उसकी पत्नी, his wife Louisa is so tense and so anxious क्योंकि उसका husband has started to see things which do not exist. तो आपके घर में अगर कोई मेंबर ऐसा करने लगे, आप तो बिल्कुल डर जाएंगे, आप बिल्कुल घबरा जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को कैसे मैनेज किया जाए. उसका साइकियाट्रिस्ट, उसके दोस्त सब ऐसा कहते हैं कि हां, चार्ली को देख के ऐसा लगता है कि चार्ली जरूर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का एक पेशेंट है. चार्ली कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है.
चार्ली को एक और हैबिट है जो ये इशारा करती है कि चार्ली को वर्तमान से ज्यादा पास्ट पसंद है। अभी से ज्यादा, इस वक्त से ज्यादा पास्ट पसंद है। पास्ट के जो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे वो पुराना समय बड़ा अच्छा था, उस पुराने समय में जिंदगी कितनी अच्छी थी, कितनी रिलैक्स थी, हम ऐसे समय में रहते थे कि चीजें कितनी सस्ती थी, हम कितने खुश थे, जीवन कितना मजेदार था। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो वर्तमान को बुरा मानते हैं और पुराने समय को अच्छा बोलते हैं। तो चार्ली को हम कह सकते हैं कि वो उनमें से एक है, हम कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि चार्ली की एक और हैबिट थी जो यहां हम लिखने जा रहे हैं। चार्ली की एक और हैबिट थी विच वॉज स्टैम्प कलेक्शन। स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट उसको अपने ग्रैंडफादर से ही मिल गई थी। उसके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे और वो पुराने स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। पुराने स्टैम्प्स में क्या होता है, पुराने स्टैम्प्स में आपको उन दिनों को आप देख पाते हैं, उन पलों को याद कर पाते हैं। जैसे आपको कोई ऐसा स्टैम्प मिले जिसपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के याद में उस वक्त कोई स्टैम्प छपा था, उस वक्त, उस जमाने में, और आपको मिल जाए, आप उसको छूते हैं, यू टच दैट स्टैम्प, आपको लगता है जैसे आप उन पलों में चले गए हैं। यू आर ट्रांसपोर्टेड दैट मोमेंट। कोई ऐसा पल जब भारत आजाद हुआ था और एक स्टैम्प छपा था उस वक्त। और स्टैम्प कलेक्टर्स बहुत क्रेजी होते हैं वैसे स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए। तुम में से भी हो सकता है कि कोई बच्चा स्टैम्प कलेक्शन करता हो या किसी के घर में कोई स्टैम्प कलेक्शन करता हो। स्टैम्प कलेक्शन करने वाले लोग गजब के पैशनेट होते हैं अपने स्टैम्प्स को लेकर। उन पलों को वो जिंदा रखते हैं स्टैम्प्स के थ्रू। चार्ली को भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। ये भी कहीं ना कहीं एक इशारा करता था उसके दोस्तों को, उसके साइकियाट्रिस्ट सैम वीनर को। उसके साइकियाट्रिस्ट का नाम था सैम वीनर। सैम वीनर आएगा, आई राइट इट फॉर यू। सैम वीनर उसका साइकियाट्रिस्ट था। याद रखना बच्चों, विस्टास टेक्स्ट बुक को लेकर इस चैप्टर को पढ़ना, टेक्स्ट को खोलकर। वैसे अभी हम लोग लाइन बाय लाइन, इस अभी तक के लेक्चर में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, लेकिन अपनी टेक्स्ट को बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए करना। अगर तुम्हें टेक्स्ट नहीं मिल रही, यू कैन डाउनलोड दैट टेक्स्ट फ्रॉम गूगल फॉर एनसीईआरटी। तो चार्ली स्टैम्प कलेक्शन भी करता था। इन सब के साथ हम देख रहे हैं कि चार्ली एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न टाइम्स हिज माइंड बिगिंस टू एस्केप, develops a kind of mental disorder called waking dream wish fulfillment, lives in a hyper real modern world, modern place of Manhattan, New York, wants to escape to Galesburg, Illinois, poses to be normal, is not normal actually in the depths of his mind। और एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी ही द थर्ड लेवल है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। लेक्चर 2 जब हम शुरू करेंगे तो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को पढ़ना शुरू करेंगे और वहां से करेंगे। आज इस इंट्रोडक्शन के साथ वी फिनिश दिस लेक्चर। थैंक यू।